रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने महेश्वरम असम्बली हल्के के एक तांडे में कोविड-19 वैक्सीन के कायम करदा कैंप का मुआयना किया और वहां अपने दूसरे डोज का टीका भी लगवाया। उन्होंने कबायली आवाम से बातचीत करते हुए कहा कि तांडों में बहुत कम टीके अंदाजी रिकॉर्ड की जा रही है, जो कि काबिल तशवीश बात है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से महफूज रहने के लिए हर शहरी को जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है टीके लेना जरूरी है। गवर्नर ने मास्क पहनने और जिस्मानी दूरी बरकरार जैसी एहतियाती तदाबीर बदस्तूर इख्तियार करने की जरूरत पर जोर दिया। I also welcome you all to Tandal village. The message today is అందరూ ధైర్యముగా వ్యాక్సిన్ తీసుకోండి. అందరూ ధైర్యముగా వ్యాక్సిన్ తీసుకోండి. వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే మనం అందరం కోవిడ్ను జయించవచ్చు. అందరూ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలి. అందరికీ వ్యాక్సిన్ తీసుకోమని చెప్పాలి. I wanted to come here because I learned most of the tribal sisters and brothers are hesitant to take the vaccination. So to remove that hesitancy and to motivate them for vaccination, I also had my second vaccination due, second dose vaccination. So I thought I can take the vaccination sitting among the tribal sisters, so that today, because I came here, the organization has said that within 1 or 2 days, this village will be 100% vaccinated village. So even personally, when they met me, they told, you are little hesitant, but when the governor came here and you took the vaccination with us, most of us are now courage enough to take the vaccination. So the message I want to convey by taking the vaccination in this Tanda village is, please take the vaccination. Vaccination is the only permanent protection and solution, protection against COVID, and only solution for this pandemic. Mask is temporary protection and vaccination permanent protection. And our country with 130 crore approximately population, our Honorable Prime Minister has taken Himalayan efforts to provide vaccination and protect the country from this deadly pandemic COVID. And I appreciate the state government, the Chief Minister KCR now, who is holding the portfolio of health, and they are taking forward the message of vaccination, and they are controlling the pandemic in an effective way. I want each and everyone to become the ambassadors for vaccination. We have to take the message of vaccination to each and everyone. Still, vaccine hesitancy is there. In spite of so many people, almost 30 crore people have taken the vaccination, still vaccine hesitancy is there. So we will take the message of vaccination to each and every one, so that they are not hesitant to take the vaccination. Thank you so much, and I appreciate all the media friends for your presence, and you all the people who connects the officials and the administration with the people. Please. वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने 1 अगस्त को पुराने शहर में होने वाले बोनाल तकारीब के सिलसिले में एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने बताया कि बोनाल तकारीब के सिलसिले में हुकूमत ने 7 करोड़ रुपये जारी किए हैं ताकि यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत पहुँचाई जा सके। इजलास में जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट, एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश्वरलू, कमिश्नर कल्चरल अफेयर्स हरिकृष्णा, DCP साउथ जोन जी भोपाल, डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू रामकृष्णा और दूसरे अहदेदारों के अलावा मुख्तलिफ मंदिरों की कमेटियों के अहदेदार भी शरीक थे। మన ఆషాఢ మాసం మొదటి బోనం కార్యక్రమం జగదాంబిక అమ్మవారు గోల్కొండ ప్రాంతంలో ప్రారంభమైనటువంటి బోనాల ఉత్సవాలు 25-26 తారీఖున సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మాంకాళి దేవస్థానంలో మరి ఓల్డ్ సిటీ ఉమ్మడి దేవాలయాల ఆధ్వర్యంలో జరిగేటువంటి ఆగస్టు 1-2 తారీఖు నాడు మరి బ్రహ్మాండంగా జరగాలని ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం చేయడం జరిగింది. ఆషాఢ బోనాలు అనగానే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా
మరి తెలంగాణ పల్లెల్లో గ్రామాలు హైదరాబాద్ సిటీలో కూడా ఎంతో బ్రహ్మాండంగా జరుగుతుంది. ప్రతి సంవత్సరం ఏంటంటే బోనాలు రాగానే బ్రహ్మాండమైనటువంటి వర్షాలు కురవాలి, అమ్మవారు కరుణించాలి, రైతులు పాడి పంటలతోని సంతోషంగా సుభిక్షంగా ఉండాలని కోరుకుంటాం. కానీ నిన్న బోనాల పండుగ వర్షంతోనే స్టార్ట్ అయింది. ఇది చాలా శుభసూచకం అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు పండుగలు గొప్పగా జరగాలి, ఎప్పటికప్పుడు అధికారులను అలర్ట్ చేస్తూ మరి డబ్బు అనేది క్రైటీరియా కాకుండా ఏర్పాట్లు ఘనంగా ఉండాలనేటువంటిది ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది. మరి దానికి అనుగుణంగానే కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. కానీ కోవిడ్ నిబంధనలను దృష్టిలో ఉంచుకొని శానిటైజర్ కానీ మాస్క్ కానీ సామాజిక దూరం పాటిస్తూ, రెండోది ప్రధానమైనటువంటి ఘట్టం మరి ఉమ్మడి దేవాలయాలు కాబట్టి శాంతి భద్రతలు కూడా ప్రధానమైనటువంటి కాబట్టి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకొని సీసీ కెమెరాస్ కానీ కొంత ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళు అలర్ట్ కావడం కానీ ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి నేను దీంతో పాటు ఇక్కడ ఉన్న దేవాలయాల కమిటీల మెంబర్లకు, చైర్మన్ గారికి, ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు. అధికారులు కూడా నిన్న బ్రహ్మాండంగా గోల్కొండలో ఏర్పాట్లు చేసిండ్రు. మరి డెఫినెట్గా అన్ని పండుగలకు కూడా బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఏర్పాట్లు జరుగుతాయని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. हैदराबाद सिटी आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के अमले ने 3 अफराद शिवरात्रि चंदू, चिंतागुंटा शिवनागा तेजा और मसरूखा सामान खरीदने वाला गुल्ला मधु की गिरफ्तारी अमल में आई, जिसने आसिफ नगर पुलिस स्टेशन, एसआर नगर पुलिस स्टेशन, हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नरेट, साइबराबाद कमिश्नरेट के हुदूद जिला नलगुंडा और जिला गुंटूर में से 8 स्पोर्ट्स बाइक की चोरी की थी, जिसकी आज बरामदगी हुई। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये तफसीलात बताई। इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के आला अफसरान भी मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे शहबाज बाबा के एक सवाल पर श्रीनिवास ने कहा कि हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में NIA के हालिया छापे के बाद पुलिस माइग्रेंट्स पर कड़ी नजर रखे हुए है। आज आसिफ नगर डिवीज़न के ACP मारुति के लीडरशिप में एडिशनल इंस्पेक्टर श्रीनिवास, SHO रविंदर और उनका सारा क्राइम टीम मिलके एक अच्छा केस डिटेक्ट करे। इसमें 3 अक्यूज़ड है। पहला वाला शिवरात्रि चंदू 18 साल का और नेटिव ऑफ पिडगुराला। दूसरा शिवनागा तेजा 22 इयर्स, वो भी पिडगुराला का है। तीसरा मधु नेटिव ऑफ नरसरावपेट गुंटूर डिस्ट्रिक्ट। ये तीनों लोग यहाँ पे हैदराबाद आके रेकी करके एरिया आसिफ नगर के एरिया से ये लोग व्हीकल्स चोरी करें। उसमें ये लोग को टेक्निकली और ह्यूमन इंटेलिजेंस के ज़रिए ये तीनों लोगों को अरेस्ट करें। अरेस्ट करने के बाद एक 3-4 दिन के पूरा हार्ड वर्क के बाद ये लोग हमारा पूरा टीम पिडगुराला जाके वहाँ से 8 व्हीकल्स रिकवर करें। इसमें कई केसेस है, एक आसिफ नगर के, बाकी के साइबराबाद और हैदराबाद के बाकी केसेस भी इसमें थेफ्ट केसेस रजिस्टर हुए। 4 केसेस रजिस्टर हुए और 4 केसेस अभी पेंडिंग है। तो इसमें वेरीफाई कर रहे हैं 8 व्हीकल्स के अलावा ये और भी कुछ करे क्या। तो इसमें ये चंदू जो 18 साल का है वो गैंग लीडर है। इसके अलावा ये 2 लोग शिवनागा तेजा और मधु, ये तीनों लोग चोरी करने के बाद यहाँ से व्हीकल्स ले आके मधु के ज़रिए ये लोग नरसरावपेट भी जाके वहाँ पे व्हीकल पार्क करा के फिर मधु वापस बस में आके फिर ये लोग यहाँ से जो चोरी करे व्हीकल फिर वो ले आता वहाँ पे व्हीकल। सो इस तरह ये लोग प्लान्ड तरीके से ये लोग 8 व्हीकल्स अभी तो रिकवर हुए, पता नहीं अभी और भी वेरीफाई करे कितने करे ये लोग। तो फिलहाल 8 व्हीकल्स, ये पूरा टीम हार्डवर्क के बाद ये लोग 8 व्हीकल्स रिकवर करे। तकरीबन इनका वैल्यू 20 लाख तक है। ये हाई एंड व्हीकल्स ही ये लोग आइडेंटिफाई करके चोरी करें। तो इसमें 8 व्हीकल्स अभी रिकवर हुए। ये पहला ऑफेंस है इनका। इससे पहले ये लोग अभी ये गैंग फॉर्म करे। गैंग फॉर्म करने के बाद ये लोग शुरू करे। पिछले 1 महीने से ये लोग करे। अगर से ये लोग अभी अरेस्ट नहीं होते पता नहीं ये लोग और ज़्यादा व्हीकल से लोग चोरी करने का चांस था। तो इसमें ये जो तीनों लोग हैं ये पूरे YouTube में देख के किस तरह का व्हीकल को मतलब चोरी करने के बाद उसको किस तरह का ऑन कर सकते, लॉक्ड व्हीकल का लॉक किस तरह निकाल सकते, उसको लॉक ब्रेक करने के बाद किस तरह का फिर इसमें इंजन को ऑन कर सकते, ये पूरे YouTube में देख के लोग सीख के इसके बाद में ये प्लान करके इस तरह के चोरी करे। इसमें ये पूरे 3 लोगों को अरेस्ट करके आज रिमांड कर रहे।
और 8 व्हीकल भी जो रिकवर करे वो भी कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें एसीपी शिव मारुति, आसिफ नगर एसीपी और 2 इंस्पेक्टर्स, एडिशनल इंस्पेक्टर और एसएचओ रविंदर और श्रीनिवास और उनका टीम जितना हार्ड वर्क करके करे, इन सबको हम लोग रिवॉर्ड प्रपोज कर रहे और इन सब लोगों को बधाई दे रहे कि इतना अच्छा आज ये डिटेक्ट करके 8 व्हीकल्स रिकवर करें। ये कोई स्टूडेंट्स है क्या सर? उसके तीनों अंदर का प्रोफेशन क्या है सर एक्चुअली? ये तीनों लोग तो फिलहाल तो बेकार है, कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ इनका काम अभी गैंग फॉर्म करने के बाद यही चोरी का काम कर रहे हैं। तो लोग बेचते किसको थे सर? एक बार अभी तो किसी को बेचे नहीं, प्लान है मतलब पहले पूरे इकट्ठा करे गाड़ी, अभी आगे चल के अगर से इमीडिएटली रिकवर नहीं करे होते तो बेच देते हैं लोग, अरेस्ट नहीं होते। पहले एनआईए जो है अपने एरिया में जो है कुछ लोगों को उठाई सर यहाँ पर अजीत नगर से, तो उस ताल्लुक से अपने डिपार्टमेंट को क्या इसकी नॉलेज नहीं थी सर इसके बारे में सर? नहीं, इसके बारे में वो एनआईए एजेंसी जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसमें मैं कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। वो लोग जो जब हमारा लोकल पुलिस स्टेशन का मदद मांगते हैं हम लोग ज़रूर देते हैं, असिस्ट करने में हम लोग ज़रूर तैयार रहते हैं, कभी भी वो लोग असिस्टेंस पूछते तो हम लोग देते हैं। अभी यहाँ से हैदराबाद में तकरीबन काफ़ी इलाकों से लोग आके यहाँ रह रहे सर, तो क्या पुलिस इन लोगों के ऊपर कुछ नज़र नहीं रख रही क्या सर? इन लोग के ऊपर नज़र तो है ना, हमारे लोकल पुलिस तो नज़र रख रहे, जितना हमारे को इन्फॉर्मेशन आता, कोई फॉरेनर्स है उनके ऊपर भी निगरानी रहता, जो एरिया में जो डिस्टर्बेंसेस है, बाहर के जो नेशनल्स आके यहाँ पे कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो ज़रूर हमारा निगरानी उन पे है, करेंगे। FRRO है, उनका एक एजेंसी है, हमारा SB है, इंटेलिजेंस विंग है और लोकल पुलिस है। इतने लोग अगर से कोई इलीगल स्टे कर रहे हैं उनके ऊपर भी हम लोग FIRs इशू कर रहे हैं, डिपोटेशन चल रहा, ये सब कानून जो करना है वो काम हम लोग ज़रूर करते रहेंगे। वो लोग अगर से कभी भी गैर कानूनी काम करेंगे तो अरेस्ट होंगे। वक्फ बोर्ड फिर एक बार नाकाम साबित हुआ है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड को शायद किसी की नजर लगी है या फिर ऐसा अमलन हो रहा है कि वक्फ बोर्ड अपने ही जायदादा कुछ हद तक बचाने में नाकाम साबित हो रहा है। जिला खम्मम के ख्वाजा अमीनुद्दीन ने वक्फ बोर्ड में तौलियत की दरख्वास्त दाखिल की थी, मगर पिछले 5 साल से इसकी एक सुई के लिए वक्फ बोर्ड दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। अमीनुद्दीन का कहना है कि पिछले 200 साल से इनके खानदान के पास तौलियत है। ख्वाजा अमीनुद्दीन का कहना है कि उन्होंने वक्फ की 200 एकड़ अराजी पर से 80 पट्टेदारों को ग्राम सभा प्रोग्राम के तहत कलेक्टर की मदद से कैंसिल कराने में कामयाबी हासिल की है। तौलियत के लिए उन्होंने होम मिनिस्टर महमूद अली, प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटीज वेलफेयर अहमद नदीम, CEO शाहनवाज कासिम और दूसरे अहदेदारों से मुलाकात की और इसकी तवज्जो दिलाई, मगर अब तक कुछ हासिल ना हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने चेयरमैन मोहम्मद सलीम से अपील की है कि वो इस मसले पर एक नज़र डालें। आइए सुनते हैं मजीद तफसीलात ख्वाजा मोइनुद्दीन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम ख्वाजा अमीनुद्दीन है, मैं खम्मम डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरी इनामी ज़मीन जो है मदरा मंडलम माटुल ग्रामम में है, सर्वे नंबर 942 है और गैर कानूनी कब्जे हुए हैं, जिसके लिए मैं 5 ग्राम सभा अटेंड किया। KCR साहब के कहने पर पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट किया मैं और वक्फ बोर्ड में मेरा फाइल नंबर VT28 है तौलियात। 5 साल से मैं वक्फ बोर्ड के पीछे पीछे फिर रहा हूँ। आप अहमद कासिम साहब से, CEO साहब से और मिस्टर सलीम साहब से, चेयरमैन मिस्टर सलीम साहब से और महमूद अली साहब से और KCR साहब से, KTR साहब से, सबसे मेरी अर्ज़ गुजारिश है, हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक नज़र मेरे तरफ भी देखें। मैं 5 साल से फिर रहा हूँ और आप लोग से गुजारिश है मेरी मदद कीजिए, समझा। और वो 80 पट्टे हम मेरी नुमाइंदगी में मेरे रिश्तेदारों के साथ में मैं कैंसिल किया हूँ, समझा। पूरे पट्टे पूरे कैंसिल हो गए। धरनी वेबसाइट में भी आ गया है इनाम भूमि बोल के। मुझे 5 साल से वक्फ बोर्ड से मुतवल्ली नहीं बना रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्दी बनाएं। और ऑलरेडी मैं धरनी वेबसाइट में भी दाखिल किया, सो मेरी वजह से धरनी वेबसाइट में भी आ गया है। ये पट्टे भी मेरी वजह से कैंसिल हुए। आप लोग मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मेरी मदद कीजिए, आप लोग से गुजारिश मेरी यही है।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पीर को इंदिरा पार्क के पास एक बड़ा धरना मुनज़्ज़म किया। प्रदेश कांग्रेस के कारकुदा सदर और साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव अलामती एहतजाज करते हुए बैल मंडी पर धरना के मुकाम को पहुंचे। उन्होंने कहा कि फ्यूल की कीमतों में इजाफे से आवाम की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। पुलिस ने बिला इजाजत धरना मुनज़्ज़म करने पर सैकड़ों पार्टी कारकुनों को हिरासत में ले लिया। महिला विभाग की सदर सुनीता राव को भी हिरासत में लेकर बेगमपेट वुमेन पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया। तेलुगुदेशम तेलंगाना के सदर एल रमना गुमनाम टीआरएस पार्टी के दफ्तर बंजाराइल पहुंचे और उन्होंने कारकुदा सदर और रियासती वजीर के रामाराव के सामने पार्टी की रुकनीत हासिल की। वो 16 जुलाई को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में अपने बेशुमार हामियों के साथ बाकायदा तौर पर टीआरएस में शामिल हो जाएंगे। रमना ने जो माजी में 2 मरतबा एमएलए और 1 मरतबा एमपी रह चुके हैं, मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की काबीना में 1994 1996 वजीर हैंडलूम भी थे। డంప్ యార్డుని ఈరోజు హైదరాబాద్ ప్రజల యొక్క పెద్ద దిక్కుగా ఉన్నది జవహర్ నగర్. నేను గతంలో మంత్రి గారి ఆహ్వానం మేరకు అక్కడ ఒక వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ప్లాంట్ని పెట్టినప్పుడు చెత్త నుంచి విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసే 20 మెగావాట్ల ప్లాంట్ను దక్షిణ భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద ప్లాంట్ను అక్కడ స్థాపించినప్పుడు కూడా ఆ రోజు ప్రారంభోత్సవం నాడు కూడా నేను ఇదే మాట చెప్పిన. హైదరాబాద్ ప్రజలు మీకు ఎంత చేసినా జవహర్ నగర్ రుణాన్ని మేము తీర్చుకోలేము. కాబట్టి తప్పకుండా జవహర్ నగర్ కార్పొరేషన్ అభివృద్ధికి ప్రత్యేకంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి నిధులు మంజూరు చేయించే బాధ్యత నాది అని చెప్పి సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఈ విషయంలో రాజకీయాలకు అతీతంగా అక్కడ ఎవరున్నా ప్రజలు మా వాళ్ళే కాబట్టి మన వాళ్ళే కాబట్టి తప్పకుండా మేయర్ గారు కూడా పలుమార్లు కోరినారు. తప్పకుండా వారు కోరిన విధంగా జవహర్ నగర్ని, ఎందుకంటే ఇప్పటికే ఇందాక చెప్పినట్టు ఒక వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ప్లాంట్ ప్రారంభించాము. దానివల్ల కొంత సమస్య తగ్గింది. క్యాపింగ్ అనేది కూడా మొత్తం అక్కడ ఉండే గుట్టలుగా ఉన్న లెగసీ డంప్ యార్డును కూడా క్యాపింగ్ చేయడం ద్వారా చాలా వరకు ఈరోజు చూడడానికైనా లేదా ఇతరత్ర అయినా చాలా వరకు సమస్య తగ్గింది. ఇంకా సమస్య ఉంది. దాంతోపాటు ఆ లెగసీ డంప్ అంటే ఎప్పటి నుంచో దశాబ్దాల నుంచి పేరుకుపోయిన చెత్త నుంచి వర్షం పడ్డప్పుడల్లా కిందికి నీళ్లు ఇంకి పక్కనే ఉన్న చెరువుల్లోకి పోయి ఇబ్బంది అవుతా ఉన్నది. అక్కడ లీషెట్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ కూడా కావాలి అంటే దానికి కూడా ఒక 250 కోట్ల రూపాయలతో ఒక లీషెట్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ని కూడా ఇప్పటికే మంజూరు చేయడం జరిగింది. టెండర్ ప్రక్రియ కూడా పూర్తయింది. దాన్ని కూడా ప్రారంభించినట్టయితే అప్పుడు మనకి అన్ని రకాలుగా కూడా చెత్త కొత్తగా రాకుండా ఎప్పటికప్పుడు వేస్ట్ ఎనర్జీ ప్లాంటు, దాంతోపాటు ఈ లిషెట్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ కూడా పెట్టినట్టయితే ఆ దుర్గంధం కూడా రాకుండా చేసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి తప్పకుండా ఆ కార్యక్రమాన్ని వేగవంతం చేసి జవహర్ నగర్ ప్రజలకి న్యాయం చేస్తామని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తూ, ప్రత్యేకంగా నిధులు కావాలని మంత్రి గారు ఏదైతే కోరినారో దాన్ని కూడా తప్పకుండా బాధ్యతగా తీసుకుంటాం. దాంతోపాటు మరి కొంతమందికి అక్కడ ఇండ్ల పట్టాల విషయంలో కూడా మంత్రి గారు ముఖ్యమంత్రి గారి క్యాబినెట్లో కూడా చెప్పి ఉన్నారు. ఎట్లా అయితే జీవో నంబర్ 58, 59 కింద పేదలకు హైదరాబాద్లో పట్టాలు ఇచ్చామో, ఇతర గ్రామాల్లో మున్సిపాలిటీలో కూడా పట్టాలు ఇచ్చామో, అదే రకంగా జవహర్ నగర్లో హెచ్ఎండిఏ పరిధిలో ఉంది కాబట్టి ఇవ్వలేకపోయినాము, మనం అక్కడ కూడా ఇవ్వాలని చెప్పి మంత్రి గారు కోరినారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి మళ్ళొకసారి నేను మల్లారెడ్డి గారు ఇద్దరం కూడా ఆ సమస్యను తీసుకొని పోయి దాని పరిష్కారాన్ని కూడా తప్పకుండా ప్రయత్నం చేస్తాం. నేను ఇందాక మీకు విజ్ఞప్తి చేసినట్టు మీరు కూడా హైదరాబాద్ చుట్టూ ఉండే కార్పొరేషన్లు కానీ మున్సిపాలిటీలు కానీ వీటి కోసం ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రణాళిక రూపొందించమని చెప్పి ఇప్పటికే మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారికి, మంత్రి మల్లారెడ్డి గారికి ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకరోజు ప్రత్యేకంగా సమావేశం పెట్టి కూడా ఆదేశం ఇచ్చినారు. కాబట్టి హైదరాబాద్ నగర విస్తీర్ణం ఎట్లయితే పెరుగుతూ పోతా ఉందో, జనసాంద్రత ఎట్లయితే పెరుగుతూ పోతా ఉందో దానికి తగ్గ విధంగా భవిష్యత్తులో కూడా మనం ధీటుగా సన్నద్ధంగా ఉండాలి అంటే తప్పకుండా ఈ శివారు మున్సిపాలిటీలన్నింటినీ కూడా ఓఆర్ఆర్ లోపల ఉండొచ్చు, ఓఆర్ఆర్కి కొద్దిగా అవతల ఉండొచ్చు, వాటి పట్ల ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధతో పనిచేయాల్సిన బాధ్యత మన మీద అందరి మీద కూడా ఉంటుంది. ఇక రాజకీయంగా మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, ఈరోజు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో రాష్ట్రాన్ని సాధించుకోవడం మాత్రమే కాదు, రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి బాటలో కూడా ముందుకు తీసుకొని పోతా ఉన్నాం. రాష్ట్రంలోని ప్రతి వర్గానికి, ప్రతి పేదవాడికి ఏదో ఒక రకమైన లబ్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాల ద్వారా, అభివృద్ధి కార్యక్రమాల ద్వారా ఇప్పటికే ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉంది. భవిష్యత్తులో కూడా కరోనా వచ్చినా, ఇంకా ఇప్పటికే వచ్చి కొంత దెబ్బతిన్నా, భవిష్యత్తులో కూడా ఇదే ఒరవడిని కొనసాగిస్తూ సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను సమిష్టిగా జోడెద్దుల మాదిరిగా తీసుకొని ముందుకు పోతాం. ప్రజలు తప్పకుండా పనిచేసే ప్రభుత్వాన్ని तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारकुदा सदर व रुकने संबली जग्गा रेड्डी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जिले नलगुंडा के मिरियालगुड़े में कांग्रेसी कारकुनों के एहतजाजी धरने की क़यादत की। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर फ्यूल की कीमतों पर काबू पाने में नाकाम हो जाने का इल्जाम आयद किया और कहा कि पेट्रोल पर टैक्स आयद करने के मामले में मरकज और रियासत दोनों
एक दूसरे के साथ मुसाबकत कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे ने आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। धरना में हिस्सा लेने वालों में साबिक एमएलए बाला नायक और सदर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी शंकर नायक भी शामिल थे। कॉन्ट्रैक्ट नर्सों की खिदमत खत्म कर देने के खिलाफ बीजेपी के महिला मोर्चा ने कोठी पर वाक़े डायरेक्टरेट मेडिकल एंड हेल्थ के सामने धरना मुनज़्ज़म करने की कोशिश की। पुलिस ने इन एहतजाजी कारकुनों को हिरासत में लेकर मलकपेट पुलिस स्टेशन को मुंतकिल कर दिया। घटकेसर एमपीटीसी की मेंबर शोभा रेड्डी ने कहा कि 1600 से ज़ायद कॉन्ट्रैक्ट नर्सों ने कोविड-19 की वबा के दौरान गैर मामूली खिदमत अंजाम दी है, लेकिन हुकूमत ने उनकी खिदमत को बरतरफ करते हुए उन्हें इस खिदमत का सिला दिया है। ఉద్యోగాలని చెప్పి ఇప్పటివరకు 1,00,000 ఉద్యోగాలకే ఆపినారు. ఇప్పుడు ఉన్న 1600 మందిని కూడా మళ్ళీ రోడ్ల మీదకి తీసుకొస్తున్నారు. ఇది ప్రభుత్వం చేస్తున్న అన్యాయము. ఉద్యోగాల పేరు మీద వాళ్ళకి ఒక ఆశ కల్పించి వాళ్ళ ప్రాణాలు తెగించి వాళ్ళని ఉద్యోగాలలో భర్తీ చేసుకొని వాడుకున్న రోజులు వాడుకొని ఇప్పుడు అయిపోయినాక వాళ్ళని రోడ్ల మీద తీసుకురావడం చాలా అమానుషము. వాళ్ళని మళ్ళీ విధుల్లోకి చేర్చుకునే వరకు భాజపా ఖచ్చితంగా పోరాడుతూనే ఉంటుంది. वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने नौजवानों से कहा कि वो रोजगार न मिलने पर दिल बर्दाश्त ना हो और न ही खुदकशी जैसा संगीन इकदाम करें। वनप्रति के एक मौजे में बेरोजगार नौजवान कोंडल की खुदकशी पर गहरे दुख का इजहार किया और बताया कि टीआरएस ने अपनी हुकूमत के क़याम के बाद से अब तक 1,35,000 मुलाजमतें फराहम की हैं। मज़ीद 50,000 जायदादों को पुर करने के लिए बहुत जल्द एलामिया जारी किया जाएगा। वज़ीर ज़राअत ने कोंडल के वालिदीन रामलू और वेंकट अम्मा को 1 लाख रुपए का चेक हवाले किया। उन्होंने एक डबल बेडरूम मकान भी अलॉट करने का वादा किया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तादीबी कमेटी ने हुजूराबाद के कांग्रेसी कायद पी कौशक रेड्डी को मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर वजह नुमाई नोटिस जारी की है। सदनशीन कमेटी और साबिक रुकन असम्बली कोदंडा रेड्डी ने बताया कि कौशिक रेड्डी को नोटिस का जवाब देने के लिए 24 घंटे की मोहलत दी गई है। बसूरत दीगर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। खदीम मलकपेट के नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद शफी ने पद्मा नगर और दूसरे इलाकों का दौरा किया। उन्होंने आवाम से मुलाकात की और उनके बल्दी व आबरसानी मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर वर्क्स एंड सीवरेज बोर्ड के असिस्टेंट इंजीनियर आनंद रेड्डी और JTO महेश के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद उनकी हमरा थी। PV नरसिम्हा राव एक्सप्रेसवे पर पीर की सुबह एक चलती हुई कार को आग लग जाने का वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि मारुति स्विफ्ट कार में सवार खातून ड्राइवर ने आग के शोले निकलते हुए देखकर कार का इंजन फौरी ऑफ कर दिया था। एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले दूसरे मोटर वाहनों ने इस खातून को कार से बाहर निकाला। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि कार की वायरिंग की खराबी की वजह से आग लगी हो। सिटी पुलिस और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने ईद उल जुहा के पेश नज़र मुख्तलिफ महकमों, उलमा इकराम, सियासी कायदीन और जमीयतुल खुरैश के नुमाइंदों का एक इजलास सालाजंग म्यूजियम में मुनक़िद किया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने आवाम से अपील की कि वो अपनी शहरी जिम्मेदारियों का खास ख्याल रखें और ईद के मौके पर अमरूदत की बरकरारी में हुकूमत के साथ ताउन करें। उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और अमन आमा को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के साथ सख्ती के साथ निपटा जाएगा। उन्होंने ईद उल जुहा के मौके पर शहर में साफ सफाई का खास ख्याल रखने और कोविड-19 कवायद पर अमल करने का भी मशवरा दिया। इजलास में जोनल कमिश्नर JSMC अशोक सम्राट, एडिशनल कमिश्नर क्राइम शिखा गोयल, एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक अनिल कुमार, एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर DS चौहान, डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन G भोपाल, रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी, सदर वक्फ बोर्ड और सदर जमीयतुल खुरैश मोहम्मद सलीम, जामिया निज़ामिया के शेखुल जामिया मुफ्ती खलील अहमद, मौलाना सैयद अहमद उल हुसैनी सईदुल खादरी, मौलाना सैयद शाह औलिया हुसैनी मुर्तज़ा पाशा, अमीर इमारत शरिया हैदराबाद मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा, हाफिज मुजफ्फर हुसैन खान और दूसरे शरीक थे। लार्जंग म्यूजियम ऑडिटोरियम में हैदराबाद सिटी पुलिस और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तरफ से एक छोटी मीटिंग बुलाई गई जिसमें सभी बुजुर्ग लोग शरीक हुए और ईद उल अजहा के मौके पर जो हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तरफ से जो इंतज़ामात किए गए उनके बारे में चर्चा हुई। बुज़ुर्गों के तरफ से भी कुछ सजेशंस मशवरे आए जिसको हम लोगों ने नोट किया
और उसको अमल करने के लिए हम लोग अपने डिपार्टमेंट में भी चर्चा करेंगे और बात करेंगे। ऐसे मौके पे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस कायदे कानून हैं उनका इज्जत करना हम सबका ड्यूटी है, लेकिन साथ में ये भी एक ज़रूरी बात है कि कानून को किसी को अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। मैं तमाम सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर आप लोग कहीं कुछ गलत चीज़ देख रहे हैं या अगर आपको उसकी खबर मिली है तो आप डायल 100 पे फ़ोन करें या हमारे पेट्रोल ऑफिसर्स को बताएं, हमारे स्टेशन हाउस ऑफिसर्स इंस्पेक्टर साहिबान को बताएं, डीसीपी को बताएं, हम लोग फौरन कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप कभी भी खुद अपने हाथ में कानून लेने का कोशिश नहीं करें। जीएचएमसी, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट की जॉइंट टीम हर जगह रहती है। ये आपकी सेफ्टी के लिए है और हम लोग सब मिलकर ये एक जो जश्न का माहौल है, ईद उल अजहा, इसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हैदराबाद सिटी पुलिस के सभी लोग, सभी ऑफिसर इसमें आपकी मदद करें, आपके साथ शरीक हों। आने वाले समय में अभी बारिश का बहुत मौसम है, बहुत जगह सड़क पर पानी है, रोड स्लिपरी है, तो इसका भी थोड़ा सब लोग ध्यान रखें। इस समय जनरली रोड एक्सीडेंट थोड़ी बढ़ जाती है। बाइक पर जो लोग थोड़ी ज़्यादा स्पीड में घूमते हैं, स्लिप करते हैं। अभी 2 दिन पहले एक मौत हुई नॉर्थ जोन में, तो मैं इसलिए भी वो कहना चाहता हूं कि अगर सेलिब्रेशन का मकसद ये नहीं है कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचा लो या किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाओ, थोड़ा अलर्ट रहना, थोड़ा समझ के रहना। और ऐसे ही इस मौके पर सभी बुजुर्गों को जो इस मीटिंग में आज शरीक हुए, उनको मैं सिटी पुलिस के तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। सर, इन दिनों सोशल मीडिया एक ऐसा चीज़ है जिसमें बहुत लोग मिसयूज़ कर रहे हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने केस बुक किया था बहुत लोगों के ऊपर, और आपके लिए मैं एक बात शेयर करना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते 2 इंसान को 6 महीने की सज़ा भी हुई इसमें, जिसका अखबारों में जिक्र भी आया। तो सोशल मीडिया पे अगर आप कुछ अपलोड कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेवारी है कि वो सही है या गलत। अगर गलत चीज़ आप अपलोड करेंगे तो आपके खिलाफ केस बुक होगा। कुछ लोगों ने इसके पहले देखा गया है कि दूसरे देशों की, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा का वीडियो लगा देते हैं कि ये हैदराबाद का है। ये बिल्कुल गलत चीज़ है और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होगी। इसी तरीके से जो बयानबाजी करते हैं, अगर आपके बयानबाजी से किसी मजहब को चोट लगता है, उसके लोगों को, उसकी फीलिंग्स को हर्ट होती है, तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद गंगा जमनी तहजीब का एक मिसाल है और तेलंगाना स्टेट आने के बाद से यहाँ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रफ्तार है, ये देश में अव्वल नंबर पे है। और इसके लिए हम आप सब की जिम्मेवारी है कि हैदराबाद का अमनो चैन किसी भी हाल में गड़बड़ नहीं होने दिया जाएगा। सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, फंक्शन को मनाएंगे और गरीबों का ख्याल रखेंगे। खास करके ईद उल अजहा में जब कुर्बानी होती है तो गरीबों का ज़रूर ध्यान दें कि उनको अपने तरफ से जो भी आप देना चाहते हैं ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आज कांग्रेस ने रियासत भर में एहतजाजी धरने मुनज़्ज़म किए और रैलियां निकाली। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शोबे अखिलियत ने गांधी भवन से घोड़ों पर एक रैली निकालने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। पीसीसी के तर्जुमान से निजामुद्दीन, मोहम्मद उस्मान खान और दूसरों को पुलिस ने हिरासत में लेकर बेगम बाजार पुलिस स्टेशन को मुंतकिल कर दिया।
रियासती असेंबली में कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमाका ने फ्यूल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कांग्रेस कारकुनों के एक एहतजाजी धरने की क़यादत की, जो खम्मम में मुनज़्ज़म किया गया था। वो बैल मंडी पर सवार होकर धरना के मुकाम को पहुंचे थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। कांग्रेस के दौर में पेट्रोल की कीमत 60 रुपए फी लीटर थी, जो कि अब बढ़कर 105 रुपए हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आलमी मंडी में तेल की कीमत में लगातार कमी आ रही है, लेकिन मुल्क में पेट्रोल की कीमतें आसमान को छूती जा रही हैं। बारगस में इतवार की रात एक घर के सामने बैठने और ऊंची आवाज में बातें करने पर इतराज करने पर दो ग्रुपों में तसादुम होगा, जिसमें 12 अफराद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि सलमान और सैयद तारिक के दरमियान लफ्जी झड़प हुई थी और फिर इसके बाद तारिक ने अपने दोस्तों को साथ लाकर सलमान और उनके भाइयों पर लाठियों और सलाखों से हमला कर दिया। पुलिस चंद्रायन ने सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज किया और दोनों ग्रुपों से ताल्लुक रखने वाले 16 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madannapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.